So, till now, we have understood three very massive ideas. The first idea that we have understood is of capital mobility. कि capital mobility क्या होती है? Then, we have understood how to link capital mobility to balance of payments, right? And third, we have also talked about policy dilemmas, that how government chooses between a mix of different policies, ठीक है? That they can take to solve particular problems. Okay, so these are the three major concepts that we have already discussed up till now, and इन तीनों को ही कंबाइन करके वी गेट समथिंग विच इज़ नोन एज द मंडेल फ्लेमिंग मॉडल. नाउ वन ऑफ द वेरी 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 एंड द मोस्ट important topic of open economy, and if ISLM is something that explains us about closed economy, then Mendel Fleming model explains us about the open economy case, right? Okay, so open economy macroeconomics का सबसे important concept अभी हम पढ़ने वाले हैं. Now before we start studying this model, let's undertake some historical context about it. So this model was developed in 1960s, and this was developed by two economists. पहले का नाम है Robert Mundell. He was Robert Mundell, and the second person is Marcus Fleming. He is Marcus Fleming. Okay, so Robert Mundell and Marcus Fleming developed Mundell Fleming model, and this is important historically. Why I'm saying this is because at that time countries mostly followed fixed exchange rates. Okay, so उस time पे mostly countries followed fixed exchange rates. Flexible exchange rates इतना common नहीं था to adopt, ठीक है? And when countries were following fixed exchange rates, उसी time पे we saw that globalization was starting to take place, right? Globalization काफ़ी तेज़ी से हो रहा था. तो fixed exchange rate था in most of the countries, and we could also see globalization coming up. So economists started asking this one question, that how is policy going to work when money can move internationally, क्योंकि globalization हो रहा है. So we know that there is going to be capital mobility, है ना? Globalization of finance, if I must say. So globalization of finance was happening, so economists started asking this question, that if capital can flow, if capital can move, then how it is going to affect policy making, right? And this question gave birth to the Mundell Fleming model. Okay, so we have now till now understood a little about the background of this model. Now, core idea kya hai is model ka? What is the core idea of this model? So this model says something which I'll write as core idea of the model. So this model says that, I'm going to write it down, you can write it with me, that fixed exchange rates, under fixed exchange rates and perfect capital mobility, perfect capital mobility, a country cannot run an independent, a country cannot run an independent monetary policy. क्या बोला हमने? कि अगर मेरे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो, इफ़ आई हैव फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, पहला कि आई हैव फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एंड सेकंड मेरे पास परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी हो, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी अलाउड हो, कैपिटल कैन मूव फ्रीली, देन अ कंट्री कैन नॉट रन एन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी. तो वो कंट्री एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी रन नहीं कर सकती है. नाउ एज बिजार एज दिस स्टेटमेंट sounds to you right now, but you will slowly understand कि इसका मतलब क्या है. एंड दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, राइट? कि मेरे पास अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो एंड मेरे पास अगर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी हो, तो मेरी कंट्री के पास इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं हो सकता, राइट? नाउ व्हाई डज दिस हैपन? वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? कि ये क्यों होता है. तो धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं हम इसको. पहले सबसे पहले आ जाओ कि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का क्या मतलब था. परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का मतलब था दैट मनी कैन मूव इंस्टेंटली अक्रॉस कंट्रीज, है ना? मनी कैन मूव, एंड हमने देखा था कि मनी कैन मूव इंस्टेंटली, है ना, अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज. इस ये मतलब था मेरे पास परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का. और फिक्स एक्सचेंज रेट का क्या मतलब था? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है जब सेंट्रल बैंक प्रोमिसेस टू कीप एक्सचेंज रेट कांस्टेंट. तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक हमने देखा है कि इंटरवीन करती है मोस्टली मार्केट में, एंड इट मेक्स श्योर कि जो मेरा एक्सचेंज रेट है वो कांस्टेंट रहे. तो ये दोनों चीज़ें तो मुझे बिल्कुल क्लियर है.
ठीक है। अब स्टार्टिंग से ना हम एक न्यूमेरिकल भी अपने साथ लेते चलेंगे, तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट है मेरे पास वो है 5%, और जो इंडिया का भी है इनिशियली वो भी 5% है। तो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट और इंडिया का इंटरेस्ट रेट सेम है, तो ये मेरे पास स्टेबल कंडीशन है, ये मैं जानती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास स्टेबल कंडीशन है। अब यहाँ से क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप जो हुआ, ठीक है, विल टेक इट अप स्टेप बाय स्टेप, एंड रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, तो हर चीज़ उस एंगल से होगी। ठीक है, सो सबसे पहले क्या हुआ कि स्टेप वन, आई राइट इट योर स्टेप वन, सबसे पहले हुआ दैट सेंट्रल बैंक जो है मेरी, सेंट्रल बैंक टाइटन्स मनी। ठीक है, सेंट्रल बैंक टाइटन्स मनी, इसका क्या मतलब है? सो यू इमेजिन दैट आरबीआई सडनली वांट्स टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, लेट्स से। ठीक है, आरबीआई डिसाइड करती है कि यार इन्फ्लेशन ना रिड्यूस करना है कंट्री में, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कंट्री में इन्फ्लेशन रिड्यूस करना है। जब सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है कि उसको इन्फ्लेशन रिड्यूस करना है, तो उसको मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन इज ड्यू टू अ हाई मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी राइट नाउ। ठीक है, तो जब तक सेंट्रल बैंक मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी एंड मनी सप्लाई रिड्यूस नहीं करेगी इकोनॉमी में, तब तक इन्फ्लेशन हाई रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मनी सप्लाई होता है प्राइस लेवल उतना बढ़ता है ना। तो मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को। मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि मनी सप्लाई जो है दैट विल रिड्यूस, मनी सप्लाई विल रिड्यूस, मनी सप्लाई फॉल हो जाएगा। अगर मनी सप्लाई फॉल होता है तो लोन्स लोग ले पाएंगे क्या इजीली? लोन्स ले पाएंगे लोग? लोन्स इजीली लोग नहीं ले पाएंगे, है ना, क्योंकि मनी सप्लाई फॉल हो गया। मनी सप्लाई फॉल होने का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू इंक्रीज, तो लोग लोन्स नहीं ले पाएंगे, राइट? उनके लिए मुश्किल होगी, बोरोवर्स के लिए मुश्किल मुश्किल सिचुएशन हो गई। तो हम याद रखो, हम इस एग्जाम्पल से ही कंटिन्यू करने वाले हैं सारी चीज़ें। तो अभी इंडिया में क्या था, इंटरेस्ट रेट 5% था। तो अब क्या हो गया कि 5% से इंटरेस्ट रेट जो है वो मूव होके लेट्स से 8% हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है ड्यू टू मनी सप्लाई डिक्रीजिंग, राइट? तो इंटरेस्ट रेट 5% से 8% हो गया। ठीक है, तो नाउ इंडिया सडनली गिव्स हायर रिटर्न देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या होगा इस सिनेरियो में? ग्लोबल इन्वेस्टर्स तो रिएक्ट करेंगे इमीडिएटली, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स अलग अलग कंट्री से क्या करेंगे, दे स्टार्ट मूविंग ऑल ऑफ देयर मनी इनटू इंडिया। तो इसकी वजह से मेरे पास क्या हुआ, इसकी वजह से नेक्स्ट जो चीज़ मेरे पास हुई वो है कैपिटल इनफ्लो, है ना, मेरे पास हुआ कैपिटल इनफ्लो। अब इसके बाद, मैम इसके बाद क्या होता है? तो कैपिटल इनफ्लो, तो इसको भी हम एग्जांपल के फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं कि कैपिटल इनफ्लो, तो लेट्स से कि मेरे पास $50 मिलियन आ जाते हैं इंडिया में, $50 मिलियन इंडिया में आ जाते हैं। अब एक बात बताओ, अगर सब लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फॉरेनर्स को रुपीज़ चाहिए होंगे टू बाय इंडियन एसेट्स। यहाँ लिख देती हूँ मैं कि कैपिटल इनफ्लो का क्या मतलब है, दैट फॉरेनर्स नीड रुपीज़ टू बाय इंडियन एसेट्स। फॉरेनर्स को रुपीज़ चाहिए होंगे टू बाय इंडियन एसेट्स, है ना, क्योंकि उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है। तो दे नीड रुपीज़ टू बाय इंडियन एसेट्स। ठीक है, सो दे स्टार्ट बाइंग रुपीज़। अब क्या होगा, जब वो लोग रुपीज़ को ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे, देन डिमांड फॉर रुपी इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज? ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि फॉरेनर्स भी डिमांड कर रहे हैं रुपी के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो डिमांड फॉर रुपीज़ इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो नेचुरली क्या होना चाहिए था, जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है इसका मतलब उसका प्राइस बढ़ता है। तो सिमिलरली इस सिनारियो में क्योंकि रुपी की डिमांड बढ़ रही है, देन इट शुड हैव अप्रिशिएटेड, राइट? रुपी को अप्रिशिएट होना चाहिए था। आइडियली तो यही होना चाहिए दैट रुपी शुड अप्रिशिएट फ्रॉम हियर, क्योंकि डिमांड बढ़ी है। तो अगर इनिशियली मुझे बताओ, अगर $1 इनिशियली लेट्स से ₹80 का था, तो अप्रिसिएशन के बाद क्या हो जाएगा, $1 अब लेट्स से अप्रिशिएट हो गया है रुपी क्यों, तो 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 हो जाता है क्योंकि रुपी अब अप्रिशिएट हो गया है। तो $1 वॉज इनिशियली ₹80, नाउ $1 इज ₹75। ठीक है, तो रुपी स्ट्रांग हो गया है। बट हमारी इकोनॉमी में क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाले लोग हैं। हम क्या हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाले लोग हैं। तो सेंट्रल बैंक ने तो प्रॉमिस करके रखा है ना, सेंट्रल बैंक ने क्या प्रॉमिस करके रखा है, दैट $1 इज गोइंग टू बी ₹80 ओनली, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता। बट यार अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है मेरी कंट्री में, तो डिमांड फॉर रुपी तो बढ़ रही है, तो रुपी तो अप्रिशिएट कर ही रही है, तो फिर ये कैसे फिक्स रह सकता है? ये तो अप्रिसिएशन का तो मतलब ही है ना कि एक्सचेंज रेट चेंज होने लगेगा। But central bank has promised not to let exchange rate change, right? So RBI cannot allow this. ये RBI allow ही नहीं कर सकती. It must maintain this कि $1 should be ₹80। अब आ जाता है मेरे पास नेक्स्ट स्टेप। हम कितने स्टेप्स डिस्कस कर चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखा प्रेशर ऑन एक्सचेंज रेट, तो इसको हम ना स्टेप 3 कर देते हैं, यहाँ पे स्टेप 3 कर देते हैं।
और सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था? सबसे पहला स्टेप तो था कि सेंट्रल बैंक ने मनी टाइटन किया था, राइट? तो ये मेरा सेकंड स्टेप था कि जब मेरा कैपिटल, यहाँ पे लिख देती हूँ, स्टेप 2 वाज़ जब मेरे पास कैपिटल इनफ्लो हुआ, ठीक है? स्टेप 3 वाज़ कि प्रेशर पड़ा एक्सचेंज रेट पे, यहाँ पे लिख लो। स्टेप 3 इज़ योर प्रेशर ऑन एक्सचेंज रेट, प्रेशर ऑन एक्सचेंज रेट, राइट? और अब मेरे पास आता है स्टेप 4, क्योंकि हम अप्रिशिएट नहीं होने दे सकते रुपी को, तो स्टेप 4 मेरे पास क्या है कि सेंट्रल बैंक हैज़ टू इंटरवीन नाउ। सेंट्रल बैंक हैज़ टू इंटरवीन, क्योंकि वो अलाउ नहीं कर सकती रुपी को अप्रिशिएट होने के लिए, क्योंकि हम फिक्स्ड एक्सचेंज इकोनॉमी में रहते हैं। तो टू स्टॉप रुपी अप्रिसिएशन, आरबीआई क्या करती है, दैट आरबीआई स्टार्ट्स सेलिंग रुपी, आरबीआई स्टार्ट्स सेलिंग रुपीज़। वो रुपी का जो सप्लाई है वो इंक्रीज करने लगती है इकोनॉमी में, रुपी का सप्लाई जो है वो इंक्रीज करने लग जाती है, ठीक है? अब ये करने से क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज करने से क्या होगा? सप्लाई इंक्रीज करने से ये होगा कि जब किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका प्राइस जो है वो फॉल हो जाता है। प्राइस फॉल होने का मतलब रुपी के सेंस में क्या है कि रुपी विल स्टार्ट डेप्रिशिएटिंग, बट इनिशियली तो रुपी अप्रिशिएट करना चाहती थी ना, तभी मेरे पास प्रेशर था एक्सचेंज रेट पे। बट अब क्योंकि सेंट्रल बैंक ने रुपी स्टार्ट किया है सेल करना, तो रुपी की सप्लाई बढ़ गई और रुपी विल स्टार्ट टू डेप्रिशिएट, राइट? तो हमारे न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करते हुए हम बोल सकते हैं कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लेट्स से डिमांड किया था कि 4 लाख रुपी, 4 लाख करोड़ ले लो, चलो 4 लाख करोड़ रुपये उन्होंने डिमांड किया था, इतना ज़्यादा डिमांड था फॉर रुपी, ये डिमांड था मेरे पास, ठीक है? बट आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने ये रुपये प्रोवाइड किए इन एक्सचेंज ऑफ डॉलर। रुपी आरबीआई ने प्रोवाइड किया क्योंकि आरबीआई ने सप्लाई बढ़ाई है रुपी की, ठीक है? तो जब डिमांड का प्रेशर आया ना, तो आरबीआई ने ये रुपी सप्लाई की है उनको। इसकी वजह से मनी सप्लाई, क्योंकि हम देख सकते हैं ऑलरेडी कि आरबीआई ने तो सप्लाई इंक्रीज की है मनी की, तो मनी सप्लाई इन इकोनॉमी ये बढ़ने लग गई। मनी सप्लाई इन इकोनॉमी स्टार्टेड टू इंक्रीज। बट एक बात बताओ, मेरा सबसे पहला गोल क्या था? सबसे पहला गोल मेरा क्या था? मुझे क्या करना था भाई? सबसे पहले तो मुझे मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन करना था ना, मुझे मनी सप्लाई डिक्रीज करनी थी ना, क्योंकि मुझे इन्फ्लेशन रिड्यूस करना था। बट इवेंचुअली हम कहाँ पहुँच गए हैं? इवेंचुअली हम पहुँच गए हैं कि मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी हैज स्टार्टेड टू इंक्रीज, क्योंकि आरबीआई ने किया है इंटरवीन मार्केट में, तो मनी सप्लाई हैज स्टार्टेड टू इंक्रीज। अब आ जाओ स्टेप 5 पे। स्टेप 5 क्या होगा फिर? स्टेप 5 इज कि तुम्हारा ओरिजिनल पॉलिसी हैज बीन रिवर्स्ड। ओरिजिनल पॉलिसी गॉट रिवर्स्ड, गॉट रिवर्स्ड। क्यों? क्योंकि मेरा ओरिजिनल पॉलिसी था, देखो सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है ये, है ना? क्योंकि मेरा इनिशियली आरबीआई वाज ट्राइंग टू रिड्यूस मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई रिड्यूस करने की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा था, है ना? इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने की वजह से कैपिटल इनफ्लो हुआ था। बट अभी देखो ओरिजिनल जो मेरा पॉलिसी था वो खुद ही रिवर्स हो गया है, क्योंकि अब क्या हुआ है मेरे साथ, इंटरवेंशन के बाद मैंने मनी को इंजेक्ट किया है इकोनॉमी में, मैंने इंजेक्ट किया है मनी इकोनॉमी में, और उसकी वजह से मेरा ओरिजिनल पॉलिसी जो है दैट गॉट रिवर्स्ड, राइट? सो मनी सप्लाई राइज्ड अगेन, और इंटरेस्ट रेट वापस क्या हुआ, फॉल हो गया, इंटरेस्ट रेट वापस फॉल हो गया, ठीक है? तो फाइनल रिजल्ट क्या है? इंटरेस्ट रेट देखो, यहाँ पे मेरे पास इंटरेस्ट रेट 8% पे पहुंचा था, है ना? यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट रेट 8% पे पहुंचा था, लेकिन वो वापस से इट विल गो बैक टू 5%, क्योंकि फिर से मेरा मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, और ये वापस से 5% होके ये वर्ल्ड रेट के ही इक्वल हो जाएगा। सो जो मेरा ओरिजिनल मॉनेटरी टाइटनिंग का पॉलिसी था कि मैं मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन करूंगी, मनी सप्लाई डिक्रीज करूंगी, दिस हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड। ये फेल्ड हो गया क्योंकि मैं परस्यू ही नहीं कर पाई एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे बड़ा कंक्लूजन क्या है कि जब मेरे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था और मेरे पास था परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, तो मेरा इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी परस्यू नहीं कर पाई। मैं इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी परस्यू नहीं कर सकती, पॉलिसी नहीं परस्यू कर सकती, क्योंकि मेरा ओरिजिनल पॉलिसी रिवर्स होते मैंने देख लिया है। तो द मोमेंट, बिकॉज द मोमेंट माई इंटरेस्ट रेट चेंज इवन स्लाइटली, थोड़ा सा जैसे मेरा इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ 5% जैसे 8% हुआ, तो कैपिटल फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, कैपिटल फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ। कैपिटल फ्लो की वजह से क्या हुआ, फिक्स एक्सचेंज रेट में कैपिटल फ्लो हो रहा है, मतलब करेंसी पे अप्रिसिएशन का प्रेशर है, अप्रिसिएशन का प्रेशर है, बट सेंट्रल बैंक मस्ट इंटरवीन, और उस इंटरवेंशन की वजह से मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई वापस से चेंज हो जाता है, ठीक है? सो मार्केट फोर्सेस द कंट्री बैक टू द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, है ना? वो वापस से 5% पे ही आ गया मेरा।
ठीक है। सो दिस इज द इंटायर चेन रिएक्शन दैट वी हैव अंडरस्टूड यहाँ से। तो अगर हम यहाँ पे सरप्लस का केस देखें, यहाँ पे ना हम दो केसेस लेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट से लिंक करके। पहला केस हम लेंगे सरप्लस का। सरप्लस के केस में क्या होगा, इंडिया में मान लो कैपिटल इनफ्लो हुआ है, ऑफ कोर्स तभी मेरे पास सरप्लस है ना, कैपिटल इनफ्लो हुआ है। कैपिटल इनफ्लो की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस आया, राइट। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है मेरा, उसको मेंटेन करना है, तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई हैज़ टू बाय डॉलर्स, है ना, आरबीआई हैज़ टू बाय डॉलर्स, और उसकी वजह से आरबीआई को क्या सेल करना पड़ेगा, इट हैज़ टू इंजेक्ट रुपीज़, ठीक है, क्योंकि हम करेंसी को अप्रिशिएट नहीं होने दे सकते, तो आरबीआई विल इंजेक्ट रुपीज़ एंड इट विल बाय डॉलर्स। एक चीज़ और है यहाँ पे, जब आरबीआई मेंटेन कर रही है हमारा एक्सचेंज रेट, एक फिक्स्ड मेंटेन करना चाहती है आरबीआई, बट आरबीआई हैज़ टू बाय डॉलर्स ऑल्सो, और इफ़ आरबीआई इज गोइंग टू बाय डॉलर्स तो डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, और हमारी करेंसी तो अप्रिशिएट हम होने नहीं दे सकते, बट क्योंकि डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो डॉलर एक तरह से अप्रिशिएट हो ही रहा है, ठीक है। तो जब इंजेक्ट किए रुपीज़ मैंने, तो मेरा मनी सप्लाई जो था वो बढ़ गया, ठीक है। सरप्लस के केस में मैंने देख लिया ये हुआ। और अब मैम बता दो डेफिसिट के केस में क्या होगा, तो गेस करो डेफिसिट के केस में क्या होगा। डेफिसिट के केस में मनी इज लीविंग इंडिया, तो मेरे पास कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है ना, कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, तो मेरे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है और आउटफ्लो का मतलब मेरा रुपी पे जो प्रेशर है, वो प्रेशर ये है कि मेरी रुपी डिप्रिशिएट भी हो सकती है, डेप्रिसिएशन का प्रेशर है इन केस ऑफ कैपिटल आउटफ्लो, राइट, क्योंकि मनी इज लीविंग इंडिया। तो कैपिटल आउटफ्लो में डिप्रिसिएशन का प्रेशर है, एंड आरबीआई ऑफ कोर्स वो होने नहीं दे सकती, तो इस केस में आरबीआई क्या करेगी, इट विल सेल डॉलर्स, डॉलर बेचेगी, ताकि डॉलर्स जो हैं वो सेल करने की वजह से डॉलर्स डिप्रिशिएट होने लगे, एंड आरबीआई विल अब्जॉर्ब रुपीज़। आरबीआई रुपीज़ को खरीदेगी, इट विल अब्जॉर्ब रुपीज़, क्योंकि जब आरबीआई रुपी को खरीदेगी तो रुपी की डिमांड इंक्रीज होगी, और जो डिप्रिसिएशन का प्रेशर है ना, वो हम थोड़ा निगेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस केस में जो मेरा मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि मैं सारा मनी अब्जॉर्ब कर रही हूँ, सारा रुपी मैं अब्जॉर्ब कर रही हूँ बीइंग आरबीआई, ठीक है। तो ये दो केसेस हमने देख लिए। सो हमें समझ आ गया है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जो सरप्लस का केस होगा मेरे पास, सरप्लस में क्या होता है, ऑटोमेटिक मॉनेटरी एक्सपेंशन हो गया। मैंने मॉनेटरी एक्सपेंशन डायरेक्टली नहीं किया, मैंने तो क्या किया, मैंने बस इतना किया कि मैंने इंजेक्ट किए रुपी, बट दिस हैज हैपेंड ऑटोमेटिकली, राइट। एंड डेफिसिट में भी आई कैन सी दैट ऑटोमेटिकली मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मुझे मिल रहा है, क्योंकि मेरा स्टेप जो था, मेरा स्टेप बस था टू अब्जॉर्ब रुपी, बट इवेंचुअली ऑटोमेटिकली जो रिएक्शन आया है वो आया है ऑफ मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सो अब हम ये लॉजिक भी लगा के देख सकते हैं ना कि जब मेरे पास इनिशियली पास्ट में ना वी हैड ब्रेटन वुड्स सिस्टम, हमारे पास क्या था, हमारे पास ब्रेटन वुड्स सिस्टम था, जिस सिस्टम में, एंड दिस सिस्टम केम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, राइट। सो ब्रेटन वुड्स के सिस्टम में फिक्स एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ करते थे, एंड गवर्नमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना कि दैट दे कांट परस्यू इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, वो उनको काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती थी। बट टुडे मेनी कंट्रीज प्रेफर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्यों, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए, कंट्रीज वांट इंडिपेंडेंस इन देयर मॉनेटरी पॉलिसी, इसीलिए दे आर मूविंग टूवर्ड्स फ्लेक्सिबल, or let me just say they moved towards flexible exchange rates because they wanted independence in their monetary policies, right। and जैसे जैसे financial markets और integrate होते जाएंगे, fixed exchange rate मैनेज करना और मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स मीन कि मेरे पास इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशिएशन डिफरेंस आएगा ही। जब इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आएगा तो आई हैव टू हैव इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी टू सस्टेन माई इकोनॉमी, राइट। सो कैपिटल क्योंकि ग्लोबली मूव करता है विद इन सेकेंड, सो मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट इज़ वेरी वेरी हार्ड, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंटायर आइडिया ऑफ द कोर आइडिया दैट वी डिस्कस्ड ऑफ मंडल फ्लेमिंग मॉडल, कि लेट मी कम बैक हियर कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी जब होती है देन वी कांट परस्यू इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। सो हमारे पास ISLM मॉडल है यहाँ पे, और जैसा कि हम जानते हैं कि मेरे पास वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट होता है एंड एक्स एक्सिस पे इनकम या आउटपुट होता है, राइट। और यहाँ पे देखो मेरा IS कर्व, ये मेरा IS कर्व है, दिस इज माई LM कर्व, इनिशियली दिस इज माई LM कर्व, दिस इज माई IS कर्व। तो हम देख सकते हैं कि इनका इंटरसेक्शन हो रहा है एट दिस पॉइंट, पॉइंट E, और E पॉइंट पे मैं क्या देख सकती हूँ, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे मेरा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट मेरे वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के बिल्कुल बराबर है, एंड
जो मेरा बीपी कर्व है, देखो मेरा बीपी कर्व यहाँ से पास हो रहा है, मेरा बीपी कर्व भी यहाँ से पास हो रहा है, एंड मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे बैलेंस्ड है, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट, ये जो ई पॉइंट है, आई एस कर्व और एल एम कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई एस कर्व और एल एम कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के बराबर है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भी बैलेंस्ड है, तो एवरीथिंग इज स्टेबल यहाँ पे, ठीक है। बीपी कर्व हॉरिजॉन्टल क्यों है ये भी हमें पता है, क्योंकि एक ही इंटरेस्ट रेट पॉसिबल है जहाँ पे मेरा बीपी कर्व जो है वो स्टेबल हो सकता है, राइट। तो अभी हमने क्या देखना था, हमने देखना था कि मॉनेटरी एक्सपेंशन अगर अभी भी करने की कंट्रीज कोशिश करें तो क्या होगा मॉनेटरी एक्सपेंशन में, ठीक है। तो ओके, अब देखते हैं। सपोज आरबीआई वांट्स टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, तो आरबीआई चाहती है कि इकोनॉमी को स्टिमुलेट करें, तो आरबीआई कहती है कि मनी सप्लाई हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो अगर लेट्स से कि मेरा इनिशियल इंटरेस्ट रेट 6% था, और आरबीआई ने लिक्विडिटी को इंक्रीज कर दिया है, मतलब मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया है, तो मेरा लिक्विडिटी कंट्री में इंक्रीज होता है। इनिशियली मेरे पास 6% था इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सो क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ाएंगे तो 6% से लेट से अब मेरा इंटरेस्ट रेट जो है वो 4% पे आ गया, क्योंकि ऑफ कोर्स मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ है तो मेरा इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। फिर इसकी वजह से आई नो ऑफ कोर्स कैपिटल आउटफ्लो भी होगा, है ना। मुझे पता है कि कैपिटल आउटफ्लो भी होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंडिया में तो कम है, तो कैपिटल आउटफ्लो भी होगा, सारा मनी अब्रॉड चला जाएगा। इसकी वजह से मेरे पास मैसिव कैपिटल आउटफ्लो हो गया, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स दे आर सेलिंग रुपीज़, क्योंकि उनको इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना, दे आर सेलिंग रुपीज़, और वो खरीद रहे हैं डॉलर्स, है ना, या कोई भी और फॉरेन करेंसी, डॉलर्स, यूरोस, कुछ भी, अभी के लिए डॉलर्स ले लो। तो दे आर सेलिंग रुपीज़ एंड दे आर बाइंग डॉलर्स, ठीक है। तो नेचुरली ऑफ कोर्स वी नो रुपी को डिप्रिशिएट होना चाहिए था, क्योंकि रुपी तो सेल कर दिए गए, तो रुपी को डिप्रिशिएट होना चाहिए था। बट हम, और एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है, तो अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आरबीआई हैज़ प्रॉमिस टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट, तो रुपी कैन नॉट बी डेप्रिशिएटेड, है ना। तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है, एंड इट सेज दैट क्या करेगा आरबीआई इंटरवीन करके, आफ्टर इंटरवेंशन क्या होगा। देखो यही सिनेरियो इंटायरली रिवर्स होने वाला है। इंटरवेंशन के बाद क्या होने वाला है, दैट वी आर गोइंग टू सेल डॉलर्स, जो इन्वेस्टर्स तो पहले रुपीज़ बेच रहे थे, बट नाउ वी आर गोइंग टू सेल डॉलर्स, एंड वी आर गोइंग टू अब्जॉर्ब रुपीज़ फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा रुपी सप्लाई इंक्रीज हो गई है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने सेल किया है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सेल डॉलर्स एंड वी आर गोइंग टू अब्जॉर्ब रुपीज़, ठीक है। तो मनी सप्लाई को क्या हुआ, क्योंकि मनी सप्लाई वापस से हमने क्योंकि अब्जॉर्ब कर लिए रुपीज़ को, तो मनी सप्लाई वापस से इट फेल बैक टू वेर इट वाज इनिशियली, ठीक है। तो ओरिजिनल पॉलिसी मेरे पास कैंसिल हो गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब मनी सप्लाई वापस से फॉल हो जाती है मेरे पास, यहाँ पे आओ, तो मेरा ये था एल एम कर्व, ये मेरा एल एम कर्व था स्टार्टिंग में। बट मनी सप्लाई पहले तो इंक्रीज हुई थी ना, आरबीआई इनिशियली इंक्रीज मनी सप्लाई, तो यहाँ से यहाँ गया था मेरा एल एम कर्व, राइट में मूव हुआ था, राइट में मूव हुआ था, एल एम डैश पे पहुंच गए थे हम पहुंच गए थे एल एम डैश पे। फ्रॉम एल एम हम एल एम डैश पे पहुंच गए थे, क्योंकि इनिशियली लिक्विडिटी बड़ी थी, तो इनिशियली मेरा एल एम कर्व राइट में शिफ्ट हुआ था मेरा एल एम कर्व, ये यहाँ से यहाँ गया था, ठीक है। बट इंटरवेंशन के बाद क्या हुआ, मेरे पास हुआ इंटरवेंशन, एंड इंटरवेंशन के बाद आई कैन सी कि मेरा एल एम कर्व देखो, इट मूव्स बैक, एल एम कर्व मूव्स बैक टू एल एम ओनली, क्योंकि एल एम कर्व वापस से शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई अपने वापस पोजीशन पे चली गई है। सो इंटरेस्ट रेट वापस से 6% पे आ जाएगा, क्योंकि पहले भी इंटरेस्ट रेट 6% पे ही था, तो हम वापस से इस पॉइंट पे आ जाते हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट वापस से वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट पर है। और मेरा देखो यहाँ पे लेट्स से मेरे पास यहाँ पे आउटपुट वाई है, और यहाँ पे हम लेते हैं आउटपुट वाई स्टार है। तो पहले क्योंकि मेरा एल एम कर्व राइट शिफ्ट हुआ होगा, जब एल एम कर्व राइट शिफ्ट हुआ होगा तो मेरा आउटपुट भी इंक्रीज हुआ होगा टू वाई डैश। बट अब क्योंकि हम वापस से, मेरा इंटरेस्ट रेट वापस 6% हो गया, तो मेरा आउटपुट भी अब अनचेंज्ड है, और मनी सप्लाई भी अपने ओरिजिनल लेवल पे पहुंच गया। सो नाउ वी नो दैट अंडर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी इकोनॉमी कभी भी प्रैक्टिकली न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच ही नहीं सकती। क्या मेरी इकोनॉमी कभी ई डैश पे पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती, क्योंकि कैपिटल फ्लोज इतने फास्ट होते हैं कि सेंट्रल बैंक भी को भी ना, मतलब सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो फोर्स्ड टू रिवर्स पॉलिसी ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ठीक है। इसीलिए उनको इंटरवेंशन करके अपने पॉलिसी को वापस रिवर्स करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ गए ये भी बात कि मेरी इकोनॉमी कभी भी ई डैश पॉइंट पे पहुंच ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इंडिपेंडेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है ही नहीं, ठीक है। तो एकदम इनइफेक्टिव है मेरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्या है, माई मॉनेटरी पॉलिसी इज कम्प्लीटली इनइफेक्टिव, क्योंकि हम कभी भी ई डैश जो मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस पर कभी नहीं पहुंच सकते, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी मेजर कंक्लूजन, ठीक है। अभी हमने मॉनेटरी एक्सपेंशन डिस्कस किया, अब एक काम करते हैं फिजिकल एक्सपेंशन डिस्कस करके देख लेते हैं कि यार मॉनेटरी पॉलिसी तो आप कह रहे हो कि बिल्कुल ही इनइफेक्टिव है, व्हाट अबाउट फिजिकल एक्सपेंशन देन।
अगर हम इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी परस्यू नहीं कर सकते तो फिजिकल एक्सपेंशन से मेरा कुछ भला होगा या नहीं, अभी हम वो डिस्कस करते हैं। तो आते हैं फिजिकल एक्सपेंशन पे। और याद रखना ये सारा हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में कर रहे हैं, ये भी फिक्स एक्सचेंज रेट में होगा, है ना। तो हमने देख लिया कि इंडिपेंडेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम देखने वाले हैं कि फिजिकल एक्सपेंशन में क्या होता है, ठीक है। सो डॉन बुश स्टार्ट्स बाय सेइंग दिस कि फिजिकल एक्सपेंशन इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव। क्या बोलता है डॉन बुश कि फिजिकल एक्सपेंशन इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में मेरा जो फिजिकल एक्सपेंशन है दैट इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव। अब कैसे, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो मेरी जी है वो इंक्रीज हुई, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट लेट्स से इंक्रीज कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, या टैक्स भी कट हो सकता है, तो जिसकी भी वजह से मेरा जी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब जी इंक्रीज होता है और आई एस एल एम कर्व हम देखते हैं, तो मेरा आई एस कर्व कहाँ मूव करेगा, राइट पे मूव करेगा। तो हम आई एस डैश पे आ गए, है ना, आई एस कर्व मेरा राइट पे मूव करता है। जब भी मेरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगा, मेरा आई एस कर्व कहाँ जाएगा, मेरा आई एस कर्व मूव्स राइट, ठीक है, मेरा आई एस कर्व राइट पे मूव हुआ। अब जीडीपी मेरी इंक्रीज हुई है अगर, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ है, तो ऑफ कोर्स मेरा जीडीपी इवेंचुअली इंक्रीज होगा। तो जब मेरी जीडीपी इंक्रीज होगी, व्हाट विल हैपन टू माय इंटरेस्ट रेट, ये बताओ। इंटरेस्ट रेट को क्या होगा, इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि जीडीपी बढ़ी है कंट्री की, मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो लेट्स से पहले मेरा इंटरेस्ट रेट 6% था, तो अब मेरा इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा, लेट्स से, ठीक है। नाउ अब क्योंकि मेरा ऑफ कोर्स वी नो कि यहाँ से मेरा कैपिटल इनफ्लो स्टार्ट होगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिकली, तो मुझे पता है कि कैपिटल इनफ्लो स्टार्ट होगा। कैपिटल इनफ्लो हुआ, इसका मतलब अप्रिसिएशन का प्रेशर आएगा रुपी पे, अप्रिसिएशन का प्रेशर आएगा, है ना, अप्रिसिएशन प्रेशर आता है। अब इसके बाद क्या होता है, तो फॉरेन इन्वेस्टर रुपीस खरीदना चालू कर देते हैं, डिमांड बढ़ जाती है और अप्रिसिएशन प्रेशर आ जाता है। फिर सेंट्रल बैंक हैज टू इंटरवीन ओनली, सेंट्रल बैंक विल इंटरवीन, सेंट्रल बैंक इंटरवीन करके हमें अब बहुत अच्छे से पता है वो क्या करेगा, दे विल बाय डॉलर्स और वो इंजेक्ट करेंगे रुपीस, है ना, क्योंकि हमें रुपी की सप्लाई बढ़ानी है, दे विल इंजेक्ट रुपीस। तो मनी सप्लाई, इस सिनारियो में मेरा मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, जैसे पहले भी होता था। तो पहले, चलो अब मैं ना ग्राफ ले लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन यहाँ से बनना स्टार्ट ना हो जाए। देखो पहले मेरे पास यहाँ पे, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर पेन, यहाँ पे मेरे पास इंटरेस्ट रेट था, यहाँ पे मेरे पास आउटपुट था। आई नो मेरा आई एस कर्व यहाँ पे था, देखो ये मेरा आई एस कर्व था, ये इनिशियली मैं इसको एल एम कर्व ले लेती हूँ, एल एम कर्व। तो सबसे पहले मैंने गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई थी, क्योंकि फिजिकल एक्सपेंशन कर रहे थे हम, ठीक है। तो मैंने गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई और मेरा लेट्स से कि ये आई एस डैश हम यहाँ पहुँच गए, राइट मूव हुआ था मेरा आई एस कर्व। और इसकी वजह से मैंने क्या देखा, देखो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले क्या हुआ, आई एस कर्व मूव्स राइट, जीडीपी बढ़ा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा। तो देख लेते हैं हम कि अगर मेरा इनिशियली बताओ, ये आई एस और एल एम कर्व का इनिशियल है मेरा इंटरसेक्शन, आई रहने देती हूँ ना, आई डैश नहीं लेते, तो ये मेरा इनिशियल इंटरैक्शन है इन दोनों का, आई एस और एल एम कर्व का, और यहाँ पे मेरे पास वाई है। जब मैंने आई से, जब हम आई से आई एस सॉरी, जब हम आई एस से आई एस डैश पे गए, आई एस कर्व जब मेरा राइट शिफ्ट हुआ है, तो मेरा जो न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है ना, आई एस डैश और एल एम कर्व का। तो मैं ऑफकोर्स देख सकती हूँ कि मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो तो बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट मेरा बढ़ गया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट मेरा बढ़ गया था, यही हमने यहाँ पे भी देखा कि इंटरेस्ट रेट 6% से 8% पे आ गया। इसके बाद क्या हुआ, कैपिटल इनफ्लो हुआ, देख लिया हमने, अप्रिसिएशन प्रेशर आया, देख लिया, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, देख लिया, और लास्ट में पता चला कि मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है। बेटा एक बात बताओ, जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो कौन सा कर्व मूव करता है, आई एस या एल एम, एल एम कर्व मूव करता है। और एल एम कर्व कहाँ मूव करेगा, राइट पे मूव करेगा, क्योंकि एल एम कर्व मनी मार्केट से डील करता है ना। तो जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो एल एम कर्व राइट में शिफ्ट होता है। अभी मेरा एल एम कर्व यहाँ पर है, तो एक बात बताओ, अभी एल एम कर्व को राइट शिफ्ट करना है मुझे, एल एम कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, एल एम कर्व को मैं यहाँ ले आती हूँ, एल एम कर्व मेरा राइट पे शिफ्ट होगा, एल एम कर्व भी मेरा राइट पे शिफ्ट होगा, तो एल एम कर्व ऑल्सो शिफ्ट राइट। अब यहाँ पे एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसको हम बोलेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट। क्या बोलेंगे हम इसको, मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलेंगे। अब क्या है ये मल्टीप्लायर इफेक्ट, सो अब दो चीज़ें हुई हैं, आई एस भी राइट शिफ्ट हुआ है ना, और एल एम भी राइट शिफ्ट हुआ है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले पहले आ जाओ, ठीक है। जब एल एम राइट शिफ्ट नहीं हुआ था तो मेरा एल एम यहाँ पे था और मेरा आई एस डैश के साथ ये इंटरेक्शन था, तो मैंने बताया था ना कि आई डैश पे हम पहुंच गए। तो उसी पॉइंट पे एक बात बताओ मुझे, उसी पॉइंट पे मेरा आउटपुट क्या था,
मेरा आउटपुट वाई डैश था। अब मेरा एल एम बी एल एम डैश पे पहुंच गया है और आई एस बी आई एस डैश पे पहुंच गया है। अब दोनों का इंटरेक्शन कहाँ पे हो रहा है? दोनों का इंटरेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है। यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है वो है वाई डबल डैश, और मेरा इंटरेस्ट रेट ले लो अ लिटिल मोर देन दिस। यहाँ पे ये मेरा आई डबल डैश है, ठीक है, जो मेरा आई से तो ज़्यादा ही है। इसको मैं थोड़ा यहाँ ले लेती हूँ साइड में ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये मेरा आई है, तो ये आई से ज़्यादा है मेरा आई डबल डैश, है ना। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट देखो कहाँ पहुँच गया है, वाई डबल डैश पे। तो इसी को मल्टीप्लायर इफेक्ट हम बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा आउटपुट जो है इट राइजेज इवन मोर, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट तो आई टेक इट अप हियर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है ना ये हमारे लिए। वेट लेट मी जस्ट टेक इट अप हियर कि क्या गायब हो गया, वेट। सो हमारे पास हमारा एल एम कर्व ओरिजिनली ऐसे था, ठीक है, इसको समझ जाना है यार, एल एम कर्व है ये, ठीक है। और जो मेरा इंटरेस्ट रेट आया न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जो कि है मेरा एल एम डैश, देखो, जो कि है मेरा एल एम डैश और आई एस डैश का ये न्यू इंटरेक्शन पॉइंट। यहाँ पे जो मेरा इंटरेस्ट रेट है वो इट मूव्स बैक टू द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट। देखो, इट मूव्स बैक टू द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट। वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट ये था मेरा सबसे पहले जो था, और वहीं पे मेरा जो फाइनल इंटरेक्शन ऑफ एल एम डैश एंड आई एस डैश कर्व वो भी मेरा वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट पे ही आता है। सो माई आउटपुट हैज़ बिकम वाई डैश, बट माई इंटरेस्ट रेट इज सेम एट वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, जो कि है मेरे पास आई, ठीक है। तो फाइनल फाइनल मेरे पास रिजल्ट क्या है कि मेरा इंटरेस्ट रेट, लेट अस जस्ट राइट इट हियर, फाइनल कंक्लूजन्स। तो मेरा इंटरेस्ट रेट रिटर्न्स टू वर्ल्ड लेवल, है ना। इंटरेस्ट रेट रिटर्न्स टू वर्ल्ड लेवल। एंड सेकेंड मेरे पास है कि आउटपुट बिकम्स मच हायर, आउटपुट बिकम्स मच हायर। जब हम आई एस कर्व को भी राइट शिफ्ट करते हैं और एल एम कर्व को भी राइट शिफ्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि मेरा आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। वाई डैश से भी वो वाई डबल डैश पे चला गया, तो मेरा आउटपुट बिकम्स हायर, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अनलाइक मेरा फिजिकल पॉलिसी बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल होता है। फिजिकल पॉलिसी इज़ वेरी वेरी हाईली पावरफुल, ठीक है। इसीलिए हमने देखा था कि डॉन बुश ने कहा है कि फिजिकल एक्सपेंशन जो है हमारे लिए, दिस इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव। फिजिकल एक्सपेंशन जो है एक्सट्रीमली इफेक्टिव है किस सिनेरियो में, जब मेरे पास हो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, ठीक है। तो तब मेरा जो फिजिकल एक्सपेंशन जो मेरा फिजिकल एक्सपेंशन है दैट इज हाई, फिजिकल पॉलिसी है दैट इज हाईली पावरफुल, ठीक है। मेरा फिजिकल पॉलिसी जो है दैट इज हाईली पावरफुल, ओके।